Welcome to Quantum Mathematics. In this lecture, we will learn about equivalence relation. So, suppose we have a non-empty set which is capital A. Of course, the set must be non-empty, otherwise there is nothing to talk about because there are no elements in the set. So, we must have a non-empty set. Now, if we have a non-empty set A, how to define equivalence relation on A? So, in order to define equivalence relation, so let's write it. An equivalence relation on, अच्छा यहाँ पे हम ये भी लिखेंगे रिलेशन का जो सिंबल है वो कैपिटल आर लिखकर चलेंगे. सो an equivalence relation capital R on this set A is defined as a relation, एक ऐसा रिलेशन which is, अब यहाँ तीन प्रॉपर्टीज आएंगी. तो फर्स्ट क्या है, सपोज वी हैव a non-empty set, so this is very important, a non-empty set. Now an equivalence relation capital R on this set A is defined as a relation which is, the first point is reflexive. So in the previous lecture we learned about what a reflexive relation is. Again in this lecture I will repeat it. So a reflexive relation, what is reflexive? So the definition of reflexive relation is that for every element of this set, this non-empty set, A comma A type of pairs belongs to the set of all ordered pairs which follow the rule of relation. That means in this set capital R. तो अगर कैपिटल A सेट के सभी एलिमेंट्स के लिए A कॉमा A टाइप ऑफ पेयर्स R में एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज दिस रिलेशन मस्ट बी सिमेट्रिक. So the second type of property is this capital R relation must be symmetric. And what is symmetric relation? How to identify that a given relation R is symmetric or not? For that we must have, for every pair A comma B belongs to R, B comma A also belongs to R if B comma A also belongs to R, then R is called symmetric. So what is a symmetric relation? अगर A comma B टाइप का कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन वाले सेट R में है और B comma A टाइप के भी पेयर्स R में है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A comma B belongs to R इम्प्लाई कर रहा है कि B comma A also belongs to R. Then R is called symmetric. In other words, that is A comma B type of ordered pair in R implies the existence of its symmetric property, which means that A comma B का सिमेट्रिकल कह सकते हैं अपोजिट B कामा A होगा, और अगर ये भी R में एग्जिस्ट कर जाए तो A कामा B टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर implies that B कामा A टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर also exist in R, then R is symmetric, which implies that R is symmetric. And now the third point, transitive. So if the relation capital R is also transitive, and what is the meaning of transitive relation? For that we must have two pairs, or there is a special case which I will tell you. So first, the general case,
if there is a pair a comma b belongs to R and a second pair b comma c belongs to R, that means अगर a comma b टाइप ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इस R रिलेशन वाले सेट में है और b comma c टाइप का भी कोई पेयर इस सेट में है, which is the set of all ordered pairs which follow the relation rule, then, अच्छा देन नहीं लिखेंगे, यहाँ इम्प्लीकेशन आएगा, implies a comma c belongs to R, then R is called, then R is transitive. So transitive relation का मीनिंग क्या है? If a comma b type of pair and b comma c type of pair both are in this relation capital R, अगर इनमें से दोनों टाइप के पेयर्स इस रिलेशन में हैं, इस सेट में हैं, और हम ये प्रूफ कर पाएँ देन ए कामा सी ऑल्सो इन आर, ए कामा बी और बी कामा सी का यूज करके अगर हम ये प्रूफ कर पाएँ कि ए कामा सी भी इसी रिलेशन में है, इसी रिलेशन वाले सेट में है, इसी में का एक ऑर्डर्ड पेयर है, देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ए कामा बी है, यहाँ एक स्पेशल केस हम लिखेंगे नोट, तो मेन पॉइंट यहाँ पे ये नोट करना है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट देर इज नो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। मतलब अगर कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी है आर में बट कोई बी कॉमा सी टाइप का ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, दैट मीन्स कि दो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिल रहे हैं, पहला ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी है, दूसरा है बी कॉमा सी, जिसमें ये दोनों ऑर्डिनेट्स मैच करें, यानी पहले पेयर का सेकेंड ऑर्डिनेट और दूसरे पेयर का फर्स्ट ऑर्डिनेट। अगर ऐसा कोई भी पेयर नहीं मिल रहा है दो जिसमें ये दोनों मैच करें, तो ये रिलेशन आर ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो जाता है। तो जब भी हम ट्रांजिटिव को टेस्ट करें किसी सेट पर, नॉन एम्प्टी सेट पर, कि वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं, तो हमें पहले तो ये टेस्ट करना होता है कि अगर ए कामा बी और बी कामा सी दोनों आर में है तो ए कामा सी मस्ट बी इन आर टू बी ए ट्रांजिटिव रिलेशन। अदरवाइज अगर ए कामा सी आर में नहीं है तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। बट इन केस देयर इज ए स्पेशल केस विच आई हैव रिटन इन द नोट, if a comma b type of pairs are in R but there is no b comma c type of pair in R, तो यहाँ पर ऐसा कोई पेयर नहीं मिल रहा है जिसमें पहले पेयर का सेकेंड ऑर्डिनेट और दूसरे पेयर का फर्स्ट ऑर्डिनेट मैच करे, देन R इज ऑल्सो ट्रांजिटिव, R बिकम्स ऑटोमेटिकली अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांजिटिव टेस्ट करने में, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चंस में आपको मिलेगा जिसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे होंगे जिनमें ये मैचिंग नहीं होगा कि किसी पेयर का सेकेंड ऑर्डिनेट और किसी दूसरे पेयर का फर्स्ट ऑर्डिनेट मैच करे। तो उस केस में हम ये नहीं कहेंगे कि रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ये मैचिंग हम तब करते हैं जब ऐसे पेयर एग्जिस्ट करें। अगर पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो हम इसको टेस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ये लगा रहता है कि क्या ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ए कामा बी और बी कामा सी अगर एग्जिस्ट करते हैं तभी हम ए कामा सी को टेस्ट करते हैं। अगर ऐसा है कि ए कामा बी तो है बट देयर इज़ नो बी कामा सी, दैट मीन्स ये दोनों ऑर्डिनेट मैच नहीं किए, बी और सी, बी और बी, पहले का सेकेंड ऑर्डिनेट दूसरे का फर्स्ट ऑर्डिनेट, देन इन दैट केस वी विल से दैट द रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली। नाउ अभी हमने देखा कि इसमें तीन प्रॉपर्टीज आई जब हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ते हैं आर पर। व्हाइल स्टडीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर on A, R must satisfy three properties. First, R must be reflexive relation. Second, R must be symmetric relation. And third, R must be transitive relation. So, if the relation satisfies both these properties, then and only then R is. Now we will learn. We will see some examples of equivalence relation. So, first example. Example number 1. So we have example. अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम पहले एक सेट कंसीडर करेंगे जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो हमारे पास एक बहुत ही
ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। लेट कैपिटल T बी द सेट ऑफ all triangles in a plane। तो हमारे पास कोई 2D प्लेन है जिसमें कैपिटल T एक ऐसा सेट है जो कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स है, यानी कि उसमें सभी ट्रायंगल्स हैं उस प्लेन में एग्जिस्ट करने वाले हैं। अब हम इस पर एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। we define a relation capital R on T edge for two elements T1 comma T2 in this set of all triangles. That means T1 and T2 both are triangles in this set capital T. T1 is related to T2 if and only if T1 is congruent to T2। That means यहाँ जो हमने रिलेशन कैपिटल R डिफाइंड किया है वो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स का रिलेशन है। दैट मीन्स इस सेट T में ये दोनों ट्राइंगल T1 और T2 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे इफ़ एंड ओनली इफ T1 एंड T2 बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंस जो होता है, सो हियर कैपिटल R मीन्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो रिलेशन हमारे यहाँ पे कौन सा रिलेशन है? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। नाउ हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंस जो टॉपिक है वो ज्योमेट्री में कई मेथड से प्रूव किया जाता है। जैसे ट्रायंगल्स का अगर फिगर हम बना के देखें तो कई मेथड्स हैं जिसमें हम 3 साइड्स का यूज करके करते हैं, या 2 साइड 1 एंगल और 1 side 2 angle etc. There are multiple methods to prove that 2 triangles are congruent or not। तो यहाँ पे हम ज्योमेट्री वाला वो डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट पहले से ये एज्यूम किए हैं जो हमारा रिलेशन है R वो कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है। तो हम अब इसको शो करेंगे, वी विल शो दैट दिस रिलेशन कैपिटल R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन दिस सेट T। For that we have to prove 3 properties. So the first which is reflexive। we have, अच्छा ऐसा नहीं लिखेंगे, we know that for every T1 belongs to T, कोई भी हमारे पास एक ट्राइंगल है T1 इस कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल triangles in a plane, T1 is always congruent to itself। एक ट्राइंगल हमेशा खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। तो ये ज्योमेट्री का रिजल्ट है, दिस रिजल्ट कम्स फ्रॉम द ज्योमेट्री, एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। यहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, दैट मीन्स which implies that T1 is related to T1 and that means T1 comma T1 type of ordered pairs are in this collection of ordered pairs R which satisfy the relation। So for every T1 comma T1 kind of pairs belongs to this relation, therefore R is reflexive। Now second, so which implies R is reflexive। Now second सिमेट्रिक प्रूव करेंगे हम, सिमेट्रिक। उसके लिए हम कोई एक ऑर्डर्ड पेयर लेकर चलेंगे। सो लेट T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R। दैट मीन्स हम 2 ट्रायंगल्स एज्यूम किए हैं T1 एंड T2 विच आर कॉन्ग्रुएंट, तभी तो हम इसको इस पेयर को हम रिलेशन वाले सेट में लिख पा रहे हैं। which means that T1 is गड़बड़ हो गया, T1 is congruent to T2। और इसका तुरंत मीनिंग क्या होगा कि T2 जो है वो T1 के कॉन्ग्रुएंट है,
क्योंकि हम रिवर्स भी कह सकते हैं, इफ़ T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 देन इट मीन्स दैट T2 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T1। ये ज्योमेट्री से भी हम दिखा सकते हैं, बट यहाँ ज्योमेट्री हम नहीं यूज करेंगे, हम डायरेक्ट ये लिखेंगे कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो चाहे आप ये बोलिए पहला ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, या फिर ये बोला जाए कि दूसरा ट्राइंगल पहले के कॉन्ग्रुएंट है, मीनिंग सेम है, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और जैसे ही हमने T2 कॉन्ग्रुएंट T1 लिखा, दैट मीन्स T2 T1 बिलोंग्स टू R। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, फॉर एवरी T1 T2 इन R we showed that T2 T1 also in R, which shows that R is symmetric. R is symmetric. And now we will test the third property, which is transitive. So for that we have to consider two pairs. Let T1 T2 belongs to R and T2 T3 belongs to R, which implies that T1 is congruent to T2 and T2 is congruent to T3। तो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक है T1 T2 और दूसरा है T2 T3। इसका मीनिंग ये हुआ जो फर्स्ट ट्राइंगल T1 है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर का मीनिंग क्या है कि जो T2 ट्राइंगल है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ज्योमेट्री में हम जानते हैं कि अगर तीन ट्राइंगल्स हमारे पास हैं, सपोज वी हैव 3 ट्राइंगल्स, ये उतना एक्यूरेट नहीं बना है बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इफ दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट एंड दीज टू आर कॉन्ग्रुएंट देन गड़बड़ हो गया, देन these two triangles are also congruent। हम ये शो कर सकते हैं using various methods, side angle side angle and other methods also। So this implies that T1 is also congruent to T3, which implies that T1 T3 also belongs to R, which shows that R is transitive। So in a way we proved that R satisfies both all three properties, reflexive, symmetric and transitive। Therefore R is an equivalence relation। R क्या हो जाएगा, एक equivalence relation। और इन सबको समझाने के लिए हमने एक वेन डायग्राम जैसा एक फिगर बनाया है जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो सबसे लार्जेस्ट सेट है ये वाला, इसमें हमने सभी रिलेशंस को कंबाइन किया हुआ है। अच्छा, ये रिलेशंस किसी सेट पर डिफाइंड होते हैं, तो वहाँ हमने सेट को मेंशन नहीं किया है, बट किसी नॉन एम्प्टी सेट पर ये रिलेशन डिफाइंड है। सो द लार्जेस्ट स्पेस डिनोट्स ऑल रिलेशंस which can be defined on a set, which on a non-empty set। Now this, the red space, we can see that this represent reflexive relations। So in the whole space which is a universal set, all relations, this red space or this collection represents only the reflexive relations, and here only symmetric relation and here only transitive relation। But हमको क्या चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस ऐसे रिलेशंस होते हैं जो इन तीनों स्पेस के इंटरसेक्शन पार्ट में आते हैं। जो आप ये शेडेड रीजन देख रहे हैं इसमें आता है। दैट मीन्स कि ये सिमेट्रिक भी है, ये ट्रांसिटिव भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है। तो अगर ऐसा रिलेशन हो जो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। थैंक यू।